तो आज आम पढ़ा टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल कौन जानले, मटेरियल कंट्रोल एस्पेक्ट्स जानले, मटेरियल कंट्रोल लेवल जानले। एबे हम जानिया टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल मींस मटेरियल को कंट्रोल करिया पे कौन कौन टेक्निक्स यूज होते हैं गोटे गोटे पढ़ा। सो नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ material control. Techniques of material control. There are different techniques used for material control. Material को कंट्रोल करने पे विभिन्न प्रकार टेक्निक्स यूज होते हैं। ओके, तो गोटे गोटे मैं लिखुची। The first one is economic order quantity. Economic order quantity. जाको शॉर्ट रे ईओक्यू मध्यम कहते हैं। ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सेकंड लेवल सेटिंग। लेवल सेटिंग विभिन्न प्रकार लेवल अच्छी, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल। तो लेवल सेट करा है मटेरियल को कंट्रोल करे। जहाँ जहाँ मैं लिखुची आपको सब गोटे वन बाय वन हमें डिस्कशन करबा। देन डबल बिन सिस्टम। डबल बिन सिस्टम। देन एबीसी एनालिसिस। एबीसी always better control. A stands for always, B stands for better, and C stands for control. So our full form is always better control analysis. Fifth is VED analysis. V stands for vital, E stands for essential, and D stands for desirable. VED vital, essential, desirable. JIT inventory. JIT just in time. Okay, J for just, INT just in time inventory. FNSD analysis. FNSD analysis. F stands for fast moving items, N stands for normal moving items, S stands for slow moving items, and D stands for dead items. FNSD fast moving, normal moving, slow moving, dead moving. Perpetual inventory system. Perpetual inventory system. Inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio. And the last is inventory cost report. Inventory cost report. So these are 10 techniques of material control. Material को कंट्रोल करने में ये तीनटा टेक्निक्स यूज कराते। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जाको शॉर्ट ईओक्यू को है। लेवल सेटिंग विभिन्न प्रकार लेवल सेट कराए थे। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये गोटे पर गोटे हम डिस्कशन करिबा आगु। Then double bin system in the next आगु डिस्कशन कराबो। ABC analysis always better control. VED analysis vital, essential, desirable. JIT inventory just in time. FNSD analysis fast moving, normal moving, slow moving, dead item. Perpetual inventory system. Okay, आगु डिस्कशन होबो। Then inventory turnover ratio and inventory cost report. और सब आपको गोटे में डिस्कशन करबा। So the first one is economic order quantity.
मीन्स हमें प्रथम डिस्कशन करबा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट आल्सो ओके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी generally there are two basic problems of inventory control साधारणतः कहया गले दुटा बेसिक प्रॉब्लम थे इन्वेंटरी कंट्रोल ओके सो फर्स्ट हमें जानिबा जनरली there are two basic problems of inventory control. Generally, there are two basic problems of inventory control. Inventory control generally dita basic control, basic problems है. First one is, but first question हम पकड़ा arise होता है. What quantity of an item should be ordered at a time. What quantity of an item should be ordered at a time? Means हमें केते quantity गोटे particular item को केते क्वांटिटी थरे करे ऑर्डर करिबा मींस हम थरे करे केते क्वांटिटी रो मटेरियल ऑर्डर करिबा ओके एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन शुड an item be ordered एवं हम केते बेले ऑर्डर करिबा ए दीटा बेसिक प्रॉब्लम अराइज होता है फॉर मटेरियल कंट्रोल और इन्वेंटरी कंट्रोल okay generally there are two basic problems for inventory control that is what quantity of an item should be ordered at a time ame thore kere kete quantity ro material ba item order kariba and the next is what should when should an item be ordered means ame kete bale item order kariba ko samay re ame item order kariba these are the two basic problems of material control or inventory control clear केते क्वांटिटी ऑर्डर करिबा और केते बेले ऑर्डर करिबा मींस हम थरे करे जो ऑर्डर करिबा मटेरियल किनिया पई तो केते क्वांटिटी थरे करे ऑर्डर करिबा एवं केते बेले ऑर्डर करिबा ओके ये दीटा बेसिक प्रॉब्लम्स आर क्लियर तो मटेरियल कंट्रोल को बा मटेरियल कंट्रोल ले हम जानथिले जे टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल or to control the cost of material consumed जहां में मटेरियल कंजम्पशन को प्रोडक्शन करिया पई तार कॉस्ट को कंट्रोल करिया को मटेरियल कंट्रोल कुआए सो व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट और इन्वेंटरी कॉस्ट रिमेंबर हमें कौन जाने चाहिए मटेरियल कंट्रोल कौन ना टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो मटेरियल हमें कंजम्पशन करछंती तार कॉस्ट को कंट्रोल करिबा होची मटेरियल कंट्रोल सो फर्स्ट और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू फाइंड आउट और टू नो व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट और व्हाट इज इन्वेंटरी कॉस्ट सो मटेरियल कॉस्ट बट टोटल मटेरियल कॉस्ट में कोची दैट इज टोटल मटेरियल कॉस्ट that is the total material cost खाली material cost मध्ये हम कहि परिबा what is the material cost is equal to what the total cost of acquisition plus total total carrying cost plus total ordering costs ओके तो जनरली ए तीनटा कॉस्ट मिसिले जनरली ए तीनटा कॉस्ट मिसिले
जो टोटल बात है आपको बात है मटेरियल कॉस्ट और इन्वेंटरी कॉस्ट। ओके, जेहेतु आम पढ़ुं मटेरियल कंट्रोल बा इन्वेंटरी कंट्रोल एवं आम जानते जे मटेरियल कंट्रोल अर्थ हूँ टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो हमको जानवर अच्छे मटेरियल कॉस्ट कौन, कॉस्ट जानिले आम जाकि कंट्रोल कर। तो मटेरियल कॉस्ट अर्थ हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स गोटे मटेरियल गोटे आइटम को किणवा आमर जहाँ खर्च होता है एक्वायर करने जहाँ खर्च करता कहते टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देन टोटल कैरिंग कॉस्ट आगे पढ़ा एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये तीनटा कॉस्ट को मिसेले टोटल होता है मटेरियल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन साधारणतः कौन होता है हमें जेतिकी क्वांटिटी मटेरियल किनिबा बा ऑर्डर करिबा इनटू प्राइस पर यूनिट माने क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड into price per unit। quantity to order में लिखिए quantity of material required बा quantity of material required or purchased। आमे जति की material किनुचंती बा हमर जति की requirement into price per unit, price per unit। ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माने जदि मोर 10,000 क्वांटिटी रो मटेरियल दरकार 10,000 यूनिट्स रो मटेरियल आवश्यक बा हम किनुची वर्ष बा 6 मास को बा 3 मास को पर्टिकुलर पीरियड पाई एवं प्राइस पर यूनिट यदि 10 टका है देन टोटल एक्विजिशन कॉस्ट इज 1 लाख। ओके, टोटल एक्विजिशन कॉस्ट बा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1 लाख मींस मु जति मोर मटेरियल किनुची बा रिक्वायरमेंट इनटू प्राइस पर यूनिट तादे मु से मटेरियल प्राइस पर यूनिट गोटा को केते यदि मल्टीप्लाई करिवि त मोर भारिबो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बा टोटल एक्विजिशन कॉस्ट। नेक्स्ट टाइम पढ़िबा टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड देन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का पढ़िबा। ओके, तो आ पूर्व हमें जानियार अछि जो तीनटा कॉस्ट हमें देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहबा टोटल कैरिंग कॉस्ट and total ordering cost। ओके, तो तीनटा कॉस्ट हम पढ़ले टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बा टोटल एक्विजिशन कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्लियर? टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नॉट अफेक्टेड by the quantity of material ordered at a time। आमे थरे केरे केते क्वांटिटी रो मटेरियल किनुचंती ता द्वारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अफेक्ट हे न थाए अनलेस देयर इज क्वांटिटी डिस्काउंट, जदि क्वांटिटी डिस्काउंट न थाए। ओके, माने आमे केते ऑर्डर करिबा माने आमे मटेरियल केते ऑर्डर करिबा से ऑर्डर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बा एक्विजिशन कॉस्ट को अफेक्ट कर न थाए मींस एक्विजिशन कॉस्ट कांस्टेंट रहथे बा सेम रहथे कोन प्रकार प्रभावित हे न थाए जदि क्वांटिटी डिस्काउंट न थाए। ओके, फॉर एग्जांपल मोर 10,000 यूनिट्स रो मटेरियल रिक्वायरमेंट केते ना 10,000 यूनिट्स रिक्वायरमेंट हेला 10,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल। प्राइस पर यूनिट केते प्राइस पर यूनिट हेला ₹10 10 टका। सपोज मु थरे करे 1000 मटेरियल ऑर्डर करूची। ओके, थरे करे 1000 मटेरियल ऑर्डर करूची। जदि मु 1000 मटेरियल ऑर्डर करे तार मु टोटल केते मटेरियल किनी अच्छा मु केतेटा ऑर्डर करी फर्स्ट मते
जदि मोर रिक्वायरमेंट 10,000 यूनिट्स प्राइस पर यूनिट होची 10 टका मु थरे करे 1000 मटेरियल बा यूनिट्स ऑर्डर करिया पे चाहूची तार मोर नंबर ऑफ ऑर्डर्स केते हो नंबर ऑफ ऑर्डर्स केते हो ना 10,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1000 10 ऑर्डर्स माने मु 1000 टा यूनिट्स थरे करे ऑर्डर करिवि मोर दरकार 10,000 ताले मु 10 थर ऑर्डर कले जाय मोर 10,000 यूनिट्स मु किनि परिबि थरे करे 1000 पुन नेक्स्ट टाइम आउ 1000 एमथि 10 थर ऑर्डर कले जाय कि मु 10,000 मो जो रिक्वायरमेंट अछि 10,000 यूनिट्स ताको मु परचेज कर परिबि ओके एबे जदि मु 10 टा ऑर्डर करूची 10,000 यूनिट्स किनिया पाई ताले एक्विजिशन कॉस्ट केते हो एक्विजिशन कॉस्ट कौन कहला ना मोर जेति की क्वांटिटी बा जेति की यूनिट्स रो मटेरियल आवश्यक बा मु किनुची इनटू प्राइस पर यूनिट अच्छा मोटी किनुची कते टोटल एटे टोटल एक्विजिशन कॉस्ट टोटल माने मु थरे करे ऑर्डर कथा कहू टोटल एक्विजिशन कॉस्ट मींस मोर जेति की मटेरियल दरकार पूरा पूरी गोटे वर्ष रे हो बा गोटे 6 मास बा पर्टिकुलर पीरियड पाई हो जेति की मोर टोटल मटेरियल दरकार इनटू प्राइस पर यूनिट मोर केते रिक्वायरमेंट ना 10,000 यूनिट्स ताले टोटल एक्विजिशन कॉस्ट हो 10,000 यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट 10 टका 1 लाख ओके एबे मु नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज करते मु एबे कहबी ना मु थरे के 2000 यूनिट्स ऑर्डर करी एठी दिला कोन ना मु थरे करे 1000 यूनिट्स ऑर्डर करती 1000 यूनिट्स ऑर्डर करती एबे मु चाहूची थरे करे 2000 यूनिट्स ऑर्डर करी ताले जदि मु 2000 यूनिट्स ऑर्डर करे ताले मोर नंबर ऑफ ऑर्डर के देबो नंबर ऑफ ऑर्डर मोर दरकार 10,000 डिवाइडेड बाय थरे करे ऑर्डर करती कोची ना 2000 दैट मींस मु 5 टा ऑर्डर करी बा 5 थर ऑर्डर करी थरे करे 2000 ऑर्डर करी तो 5 थर ऑर्डर कले मोर 10,000 जो रिक्वायरमेंट अछि मटेरियल मु किनि परिबी एबे मु जदी 5 टा ऑर्डर करी कि मटेरियल किनुछि ए 10 टा ऑर्डर करी कि मु एक्विजिशन कॉस्ट बाहर करथि मोर केते टोटल एक्विजिशन कॉस्ट होछि ना 1 लाख एबे मु 5 टा ऑर्डर करी कि टोटल एक्विजिशन कॉस्ट बाहर करी टोटल एक्विजिशन कॉस्ट केते हबो ना मु टोटल केते किनिबी बट टोटल मोर रिक्वायरमेंट केते 10,000 सेही 10,000 रहला 10,000 यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट केते ना से भी से 10 टका रहला तो इनटू 10 दैट मींस रुपीस 1 लाख दैट मींस हम एठी जानिले जे हम केते क्वांटिटी थरे करे ऑर्डर करछथि that is not or that do not affect the total cost of acquisition हम थरे करे केते क्वांटिटी ऑर्डर करछथि ताहा कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बा टोटल एक्विजिशन कॉस्ट को अफेक्ट करना थाए मोटी 1000 यूनिट्स ऑर्डर करथली थर करे मोर एक्विजिशन कॉस्ट भार करथला टोटल एक्विजिशन कॉस्ट 1 लाख बढ़ला मोय बे 2000 यूनिट्स ऑर्डर करी एबे मधु मोर एक्विजिशन कॉस्ट 1 लाख बढ़ला काहे कि काना मो जो टोटल रिक्वायरमेंट अछि से 10,000 रहला मो थरे करे 1000 करे 500 करे 5000 करे जहा भी करे ना काहे कि मोर जहा गोटे पर्टिकुलर पीरियड रे जहा टोटल रिक्वायरमेंट से तो कांस्टेंट रहला एवं यदि प्राइस पर यूनिट मध्ये कांस्टेंट अछि 10 टका ओके तो तेल करी मोर एक्विजिशन कॉस्ट कांस्टेंट रहला बा चेंज हला नै बा अफेक्ट हला नै बट जदि डिस्काउंट थांता क्वांटिटी डिस्काउंट थांता सप्लायर कहि थांता तुम यदि थरे करे 1000 यूनिट्स ऑर्डर करिवो ताले प्राइस होची 10 टका पर थरे करे जदि 2000 यूनिट्स ऑर्डर करिवो ताले प्राइस होची 9 टका 50 पैसा फॉर एग्जांपल ओके मींस हमर सप्लायर हमको ऑफर करथांता केना साधारणतः जतबे ह्यूज क्वांटिटी तुम ट्रेड डिस्काउंट पड़थला फाइनल अकाउंट रे बा फाइनेंशियल अकाउंट ट्रेड डिस्काउंट केतबेला अवेले थाए ना जतबेला हमें ह्यूज क्वांटिटी रो मटेरियल बा ह्यूज क्वांटिटी रो कोनसी जिंस किनी थो बा बल्क क्वांटिटी रे कोनसी जिंस किना है थाए सेतबेला साधारणतः हमको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है and the same is applicable in the case of quantity discount is otherwise called quantity discount. So suppose supplier हम पाखरे कंडीशन रखुची जे जदी आमे 1000 यूनिट्स ऑर्डर करिबा थरे करे 1000 यूनिट्स ऑर्डर करिबा ताहाले हमको से मटेरियल 10 टका लेखरे दबो
प्राइस पर यूनिट हम 10 टंका किंतु आम जदि थरक 2000 यूनिट्स ऑर्डर करवा 2000 यूनिट्स ऑर्डर करवा ताले हमको से 9 टंका 50 पैसा दबनी ये दुटा कंडीशन रखिला एबे आम ऊपर डिपेंड करे हम 1000 यूनिट्स ऑर्डर करवा कि 2000 यूनिट्स ऑर्डर ओके ताले मते को जदि म 1000 यूनिट्स ऑर्डर करूची ताले मु टोटल रिक्वायरमेंट तो 10000 यूनिट्स है एवं मोर प्राइस पर यूनिट से 10 टका रहला कारण मु थरे करे 1000 करची मो पर कंडीशंस अछि 1000 यूनिट्स ऑर्डर कले 10 टका बट 2000 बा ताको अधिक ऑर्डर कले 9 टका 50 पैसा एबे जदि मु येला फर्स्ट ऑप्शन येला सेकंड ऑप्शन एबे जदि मु 2000 यूनिट्स ऑर्डर करछि तर मु टोटल मटेरियल केते करछि ना 10000 यूनिट्स बट मोर प्राइस कोन हेउछि प्राइस चेंज्ड प्राइस हेउछि 9 टका 50 काहे कि ना मोटी थरे केरे 2000 यूनिट्स ऑर्डर करछि माने मते सप्लायर 9 टका 50 पैसा लेखर मटेरियल दबो ओके तार मोर केते हेजिबो ना 95000 एबे एक्विजिशन कॉस्ट केते गेला ना 95000 दैट मींस जदि क्वांटिटी डिस्काउंट अछि देन एक्विजिशन कॉस्ट अफेक्ट हेथाय नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर पर डिपेंड करता है बा केते क्वांटिटी हम थरे करे ऑर्डर करिबा दैट विल अफेक्ट द एक्विजिशन कॉस्ट इफ देयर इज एनी क्वांटिटी डिस्काउंट माने जदि किछि क्वांटिटी डिस्काउंट थाय दैट विल अफेक्ट द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर एट ए टाइम मींस that will affect the cost of acquisition means cost of acquisition को affect करिवो जे हम केते क्वांटिटी रो मटेरियल थरे करे परचेस करिबा यदि क्वांटिटी डिस्काउंट है देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी अफेक्टेड बुझि पालो मींस हम एटी जानले जे तीनटा कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टोटल कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये तीनटा मिसी के हम हेते टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट बा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्लियर First, total cost of acquisition will not be affected or will remain same, irrespective of the quantity of material purchased or ordered at a time, if there is no quantity discount. Remember, first मैं कौन कहली the total cost of acquisition will remain same. Total cost of acquisition same रहता है, मतलब समान था. Irrespective of the quantity of material or quantity of items purchased or ordered at a time. आमे थरे करे केते क्वांटिटी ऑर्डर करूछंती irrespective माने जहां भी ऑर्डर करूना काहे कि जहां भी हमें क्वांटिटी थरे करे ऑर्डर करूना काहे कि एक्विजिशन कॉस्ट बा कॉस्ट ऑफ टोटल एक्विजिशन कॉस्ट बा टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेम रहता है जदि क्वांटिटी डिस्काउंट न था ओके एग्जांपल त हमें जानले से तबले फर्स्ट टाइम जानले जे जदि क्वांटिटी डिस्काउंट नाही मु थरे के जदि 10000 यूनिट्स ऑर्डर करछि ताहले मध्ये मु 10000 यूनिट्स ऑर्डर कर केना मोर जा रिक्वायरमेंट अछि सब पूरा किनिबी एवं प्राइस पर यूनिट 10 टका लखिडो जदि मु थरे के 2000 यूनिट्स ऑर्डर करछि और क्वांटिटी डिस्काउंट नाही ताले प्राइस मध्ये से 10 टका रहबो एवं मोर टोटल रिक्वायरमेंट हला 10000 * 10 टका दैट इज 1 लाख बट जदि मु क्वांटिटी डिस्काउंट अछि मींस मते सप्लायर कंडीशंस रखुचिबा मते ऑफर करूची जे जदि 1000 यूनिट्स मु ऑर्डर करूची थरे करे तर मते से 10 टका लेखारे मटेरियल दबो बट जदि मु 2000 बा 2000 रु अधिक यूनिट्स ऑर्डर करूची एट ए टाइम बा एट वन टाइम थरे करे देन मते से 9 टका 50 पैसा लेखारे दबो तारे फर्स्ट ऑप्शन है कोन जदि 1000 यूनिट्स ऑर्डर करूची थरे करे तर मोर रिक्वायरमेंट 10000 बट मो मटेरियल प्राइस केते हला ना 10 टका लेखा कनेक्ट क्वांटिटी डिस्काउंट नाही बट मो सेकंड ऑप्शन करछि मींस मो 2000 यूनिट्स ऑर्डर करछि थरे करे ताले सप्लायर कोच मते 9 टका 50 पैसा लेखा दबो तो मो टोटल रिक्वायरमेंट केते ना 10000 बट मो किनछि केते ना लेखा प्राइस पर यूनिट 9 टका 50 तो ये हला 95 मींस जदि क्वांटिटी डिस्काउंट रहिछि ताहले जाय एक्विजिशन कॉस्ट व कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अफेक्ट होबो इफ देयर इज नो क्वांटिटी डिस्काउंट देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल नॉट बी affected irrespective of the quantity of material or item ordered at a time. Clear? Then the next is carrying cost and then ordering cost. Yeah, I'm going to go. Okay. ताले जेहेतु हमें जानिले जे यदि क्वांटिटी डिस्काउंट न थाए हमर एक्विजिशन कॉस्ट टोटल एक्विजिशन कॉस्ट अफेक्ट हे न थाए
So it is not relevant or it is not important to consider total acquisition cost for the purpose of determining economic order quantity. माने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमिनेशन करिया पे बा निर्धारण करिया पे टोटल एक्विजिशन कॉस्ट को हमें कंसीडर करि न थाउ काहे कि ना टोटल एक्विजिशन कॉस्ट जेहेतु चेंज हे न थे हम थरे करे केते क्वांटिटी ऑर्डर करूचंती ता द्वारा जेहेतु टोटल एक्विजिशन कॉस्ट चेंज हे न थे बा इफेक्ट हे न थे तेनु करी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेशन कला बेले हमें टोटल एक्विजिशन कॉस्ट को कंसीडर करिन दैट मींस that हम को कॉस्ट को कंसीडर करथो आउ दीटा कॉस्ट रहला कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कना तीनटा कॉस्ट मिसी टोटल मटेरियल कॉस्ट हेथाय तो जे तो टोटल एक्विजिशन कॉस्ट को हमें कंसीडर करना था देन ओनली द कॉस्ट टू बी टेकन केयर व्हाइल डिसाइडिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंसीडर कराय था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमिनेशन करबा क्लियर तो एबे में जाने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी काहे को कहै है व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी व्हाट इज EOQ शॉर्ट में लेछि EOQ दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी काहे को कहै इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अर्थ होछि द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड एट ए टाइम the quantity of material to be ordered at a time so that the ordering cost and carrying cost shall be minimum means हमें थरे करे केते क्वांटिटी रो मटेरियल ऑर्डर करिवा तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर एट ए टाइम थरे करे हमें केते क्वांटिटी रो मटेरियल ऑर्डर करिवा जहा फल कि सो दैट द कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट शैल बी मिनिमम जहा फल कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम clear economic order quantity अर्थ होची the quantity of material to be ordered at a time the quantity of material to be ordered at a time so that ordering costs and carrying costs shall be minimum. Okay, केते quantity of material to be ordered at a time means थरे के हमें केते quantity रो material order करिबा जा फरे की ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम काहे ना हमें आ पूर्व पड़ले जो टोटल मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन करे पहले तीनटा कॉस्ट है एक्विजिशन कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट जेहेतु एक्विजिशन कॉस्ट क्वांटिटी केते ऑर्डर करूचंती ता द्वारा इफेक्ट हेई न थाए थरे का हमें केते क्वांटिटी ऑर्डर करूचंती ता द्वारा इफेक्ट हेई न थाए जदी क्वांटिटी डिस्काउंट न थाए तो हमें मानि नबा बा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो हमें कैलकुलेशन करूचंती हमें ठी assumption नउचंती that there is no quantity discount किछि नाही means price is same और price change होनी price share होछि ओके सो जेहेतु हमर एक्विजिशन कॉस्ट चेंज हे न थाए जते भी क्वांटिटी तमे थरे करे ऑर्डर करना काहे कि तमे करी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेशन करिया पे डिटरमिनेशन करिया पे एक्विजिशन कॉस्ट को कंसीडर करा जाए नाही ताले कौन कंसीडर करा जाए ना कैरिंग कॉस्ट को कंसीडर करा जाए और ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंसीडर करा जाए तेनो करी इकोनॉमिक क्वांटिटी अर्थ होची कोन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड एट ए टाइम मींस हमें केते मटेरियल थरे करे किनिबा सो दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट शैल बी मिनिमम जा फलरे कि हमर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम माने कम ओके सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट बुझिलो economic order quantity definition is very important from practical point of view and also for theoretical point of view. Economic order quantity is very important. Okay, then economic quantity, economic order quantity
केमिति डिटरमिनेशन कराए थे व्हाट इज द फार्मूला यूज्ड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कोन हमें फार्मूला यूज करथे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमिनेशन करिया द फार्मूला determining EOQ or economic order quantity. Economic order quantity की जाने पे हमें कौन फॉर्मूला यूज करते हैं EOQ is equal to 2CO divided by I the whole root of. EOQ is equal to 2CO okay divided by I the whole root of 2CO किछि किछि अर्थर 2AO मध्ये लिखिथांती तो व्हाट इज C व्हाट इज O and व्हाट इज I EOQ तो जानो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एबे C कोन ना C होची एनुअल कंजम्पशन और एनुअल डिमांड एनुअल कंजम्पशन मीन्स हमर वर्ष को केते मटेरियल कंजम्पशन होची यूज होची बा एनुअल डिमांड बा हम बखरे वर्ष को केते डिमांड अछि मटेरियल माने आवश्यकता अछि ओके वो इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर गोटे ऑर्डर को प्लेस करिया पे हमर जहां खर्च होय थाए त कोन कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर आ पूर्व हम एग्जांपल करते जे थरे के जदी 1000 टा यूनिट्स ऑर्डर करछ पूर्व एग्जांपल तुमको बुझाव थला जे मोर 10000 यूनिट्स दरकार मु थरे के 1000 ऑर्डर करूची तो मते 10 टा ऑर्डर करिया पड़िबो नंबर ऑफ ऑर्डर से जीवो 10 जदी मु 2000 यूनिट्स ऑर्डर करूची थरे के तले नंबर ऑफ ऑर्डर से गला 5 तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर माने मु थरे जदी ऑर्डर करिबी तले मोर केते टंका खर्च हो बा तार कॉस्ट केते ता कोंदी ओ बा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर जब हमें ओ पूछती देन I is carrying costs for units for annum that is very important that is per unit per annum carrying cost per unit per annum is I means carrying cost आपको हम गोटे गोटे पढ़िबा ऑर्डरिंग कॉस्ट का कहै छै एवं ऑर्डरिंग कॉस्ट रे को खर्च को साधारणतः ऑर्डरिंग कॉस्ट कहै छै सेबा कैरिंग कॉस्ट का कहै छै एवं को खर्च को कैरिंग कॉस्ट कहै छै आपको उदाहरण गोटे गोटे पढ़िबा सो द फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग EOQ फर्स्ट हम EOQ कोन जाले माउथ रे कह दोछ EOQ हम कोन जानले ना हम थरे के रे केते क्वांटिटी ऑर्डर करिबा थरे के रे हमें केते क्वांटिटी ऑर्डर करिबा जहा फल रे कि हमर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम means the quantity to be ordered at a time or the quantity of material to be ordered at a time so that ordering cost and carrying cost shall be minimum okay इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में केमिति डिटरमिनेशन करिबा बा केते क्वांटिटी हमें ऑर्डर करिबा थरे के हमर जहा फल कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हम बता हमें केमिति डिटरमिनेशन करिबा ना फार्मूला इज प्रिस्क्राइब्ड बट फार्मूला दिया है ताको बाहर करिया पे EOQ that is 2CO divided by I the whole root over here C is EOQ is the economic order quantity C is the annual consumption or annual demand means more annually केते consumption होछ बा केते मटेरियल यूज होछ और मोर एनुअल डिमांड केते मींस मोर केते रिक्वायरमेंट मटेरियल बा आइटम्स ओ कोन ना कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मींस हम जदी थरे ऑर्डर करूची मटेरियल किनिया पय बा आइटम परचेज करिया पय ताले मोर केते टंका कॉस्ट बा खर्च होछ दैट इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ताको ओ बोली ओ निया होछ आई इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum and the most important is it is per unit and per annum वर्ष को गोटिए यूनिट कैरी करिवा पई माने स्टोर रे होल्ड करिया पई बा स्टोर रे गच्छित करिया पई बा स्टोर रे ताको मेंटेन करिया पई जहा खर्च होय थाए ता कोंती
I बा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आनम गोटिए यूनिट ऑफ मटेरियल को गोटिए वर्ष पई जदि हमें स्टोर्स रे होल्ड करचंती ताले हमर केते टंका खर्च होची गोटिए यूनिट रे मटेरियल को गोटिए वर्ष पई ओके फॉर यूनिट फॉर आनम दैट इज इंपोर्टेंट जदि हमें कैरी करचंती मींस दैट इज द cost of holding the material in the store carrying cost अर्थ होची cost of holding the material in the store रे मटेरियल को होल्ड करिया पे हमें जहां खर्च करथौ त कहते हैं कैरिंग कॉस्ट सो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर आनम मींस गोटिए यूनिट रो मटेरियल को गोटिए वर्ष पर्यंत कैरी बा होल्ड करिया पे जहां खर्च कराय थाए ताको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर आनम कहे जाय जाको लिखा होची आई Okay, so this is the formula for determination of EOQ, economic order quantity. Clear? एबे हमें गोटे गोटे पढ़िबा carrying cost का जाय ordering cost का and another thing carrying cost per unit per annum केमिति बाहर थाए ना generally carrying cost is calculated as a percentage on the value of inventory or price of inventory साधारणतः carrying cost जो calculation है थे तो इन्वेंटरी रो वैल्यू बा प्राइस रो प्राइस ऊपर परसेंटेज है ओके कैरिंग कॉस्ट जब हम कैलकुलेशन करथो सो कैरिंग कॉस्ट इज जनरली कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ मटेरियल और प्राइस ऑफ मटेरियल माने फॉर एग्जांपल जब मैं बोलिबे कि औथरे लिख दूची हम तो कैरिंग कॉस्ट जाने कैरिंग कॉस्ट होची सॉरी आई होची कोन ना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आनम मींस जो कैरिंग कॉस्ट बा आई हमें केमति डिटरमिनेशन करथौ कैरिंग कॉस्ट फॉर यूनिट फॉर आनम गोटिए वर्ष जते हमें मटेरियल को कैरी करूचंती गोटिए यूनिट रे मटेरियल को कैरी करूचंती तो कोन केते खर्च होचे कोन आई करूचंती सो आई इज इक्वल टू but I am केमति डिटरमिनेशन करथौ ना I means the percentage on the inventory value means carrying cost is calculated as a percentage on the value of inventory price of inventory में लिखुची carrying cost is calculated as a percentage on the value or price of material or inventory. Okay, inventory language. So carrying cost is calculated as a percentage of the value or price of inventory. Means I is equal to price of inventory by material into percentage per annum माने मटेरियल प्राइस केते तादरे हम परसेंटेज पर annum क्वेश्चन में मेंशन हेतु केते परसेंटेज ताको मल्टीप्लाई भेले आई भारता है बा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum होता है मींस यदि मु कभी मटेरियल प्राइस होची 10 टंका प्राइस पर यूनिट होची 10 टंका एवं कैरिंग कॉस्ट सॉरी percentage per annum is 10%, then the amount of carrying cost is 1. Okay? But I is 1. Clear? So economic order quantity बाहर करें अपने जो formula दरकार 2CO divided by I whole root of EO सी तो जानले हमें कंजप्शन केते हमर होची मटेरियल केते हमर दरकार ओके एनुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल बा एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल वो होची कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मींस गोटे ऑर्डर प्लेस करिया पई बा गोटे ऑर्डर को हमको देबा पई हेले केते टका खर्च आई जानले कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर आनम एवं से कैलकुलेशन हेते कोन ना एज ए परसेंटेज ऑन द वैल्यू और प्राइस ऑफ मटेरियल मटेरियल लो वैल्यू को प्राइस ऊपर साधारणतः
परसेंटेज अनुसार कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन है जा को मैं लिख परिबा जे आई बा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum इज इक्वल टू प्राइस ऑफ मटेरियल इनटू परसेंटेज पर annum। ओके, सो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एबे हमें गोटे गोटे पढिबा कैरिंग कॉस्ट का को जे एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट का को जे। कैरिंग कॉस्ट रे को खर्च इंक्लूड हेते एवं ऑर्डरिंग कॉस्ट रे को खर्च इंक्लूड हेते। Carrying cost, the cost of holding the material or inventory कही बार सर मतलब material को है जो तमें material कंट्रोल। So the cost of holding the material in the stores is called carrying cost. The cost of holding the material in the stores is called a carrying cost। माने मटेरियल को स्टोर रे होल्ड करिया पाई जहा खर्च हेई थाए जहा कॉस्ट हेई थाए ताको कैरिंग कॉस्ट कहते। इट इंक्लूड्स को खर्च साधारणतः एथिरे इनक्लूड हेई थाए। द कॉस्ट द कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स अच्छा मते को जनरल जदि मो स्टोर्स रे मटेरियल को होल्ड करूची आ पूर्व तुमको प्रोसीजर बता हेतला जे फास्ट मटेरियल किना हेथे और किनिया पे जहां परचेज प्रोसीजर हेथे टेंडर इनवाइटेशन करा हेथे बा टेंडर करा हेथे मींस सप्लायर मान को इनवाइट करा हेथे देन कोटेशंस आसी थे एवं कोटेशन को कंपेयर करा हेथे सप्लायर मान को कोटेशन को एवं जहार कोटेशन सुइटेबल हेथे ताको ऑर्डर कर मटेरियल ऑर्डर हला परे सप्लायर हमको मटेरियल सप्लाई करथे एवं से मटेरियल को स्टोर रे रखा है। तो से जो स्टोर रे रखा है हां देन स्टोर रे रखाला परे जतबे आवश्यक हेथे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रे स्टोर्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को से मटेरियल इश्यू करथे बा पठै थे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन बा जिंस दिया के बा गुड्स दिया के बुझला। सो मटेरियल जतबे स्टोर रे हैंडल करा होची बा स्टोर रे हम तको होल्ड करचुंती तो सेति पे कोन कोन हमर खर्च हेई थाए बा को खर्च साधारणतः हेई थाए जा कने कैरिंग कॉस्ट कहै। स्टोर्स रे जोटी मटेरियल रखा हेई थाए द स्पेस ऑक्युपाइड फॉर स्टोरिंग द मटेरियल मींस जो स्पेस बा जगह में ऑक्युपाई करथो मटेरियल को स्टोर करिया पे से जगह पे जा खर्च हेई थाए मीन्स जगह जदि में हमर जो निजर स्टोर ने स्टोर जदि में रेंट राणी जंती देन रेंट ऑफ द स्पेस और रेंट ऑफ द स्टोर। ओके से बलिया आमे इन्वेंटरी जहा इन्वेस्टमेंट करी थाउ जति के टंका में इन्वेस्टमेंट करथौ मटेरियल को किनिया पे ता ऊपर जति के इंटरेस्ट कहिना जदि आमे से पैसा को आउ कोट इन्वेस्टमेंट करथांते जति इंटरेस्ट पाई थांते। Okay, so the interest on the amount of investment made or the amount of investment blocked in the inventory means हमें जति की टंका inventory block करचंती by of investment ता पर जो interest से वाला स्टोर रे मटेरियल खर्च नष्ट हो जिबार मध्ये संभावना था डैमेज हो जिबार संभावना था सेति पे इंश्योरेंस मध्ये कराय जे जदि नष्ट हो गला इंश्योरेंस कंपनी हमको पेमेंट करबो सेति पे प्रीमियम मध्ये पेमेंट करते हैं। सो इंश्योरेंस कॉस्ट जो होता है स्टोर रे मींस हम जो इंश्योरेंस कॉस्ट करथौ मटेरियल पे ताक्से मध्ये कैरिंग कॉस्ट हेते से बेला स्टोर रे जदि कोन से मटेरियल नष्ट हो जाउछि स्पॉइल हो जाउछि ओके दैट लॉस इज आल्सो ए कैरिंग कॉस्ट। तो गोटे कैरिंग कॉस्ट ऑलरेडी तुमको थ्योरी रे दिया है व्हाट आर द कॉस्ट व्हिच आर इंक्लूडेड इन द कैरिंग कॉस्ट। तो गोटे मैं कहूँ तुमको तो कैरिंग कॉस्ट रे कौन कौन सब फास्ट हम जानले कैरिंग कॉस्ट रो अर्थ होची कोन ना द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मटेरियल्स इन द स्टोर्स इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट एंड इट इंक्लूड्स कौन कौन ना कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस व्हिच कुड हैव बीन यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस मींस जो स्टोरेज
स्पेस आमे ऑक्युपाई करछन्ती मटेरियल को स्टोर करिया पे ता पय जो खर्च होता है कॉस्ट ऑफ बीन्स एंड रैक्स बीन्स माने जो रैक हेता है जो सेल्फ हेता है सेति पय जा खर्च होता है दैट इज आल्सो स्टोरेज कॉस्ट बा सही कैरिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द मटेरियल टू अवॉइड डेटोरिएशन मींस मटेरियल रो डेटोरिएशन मींस क्षय ताकू रोकिबा पय जहा खर्च करा हेता है तना there are chances of or there are risk of deterioration of material in the stores material deterioration होबार रिस्क मध्य थाए स्टोर रे तेनु करी से रिस्क जो बा डेटोरिएशन को रोकिबा पय बा अवॉइड करिया पे जो खर्च करा थाए दैट इज आल्सो कैरिंग कॉस्ट देखो ओवरऑल काय बोले जो खर्च आमे करथौ मटेरियल को स्टोर रे होल्ड करिया पे मींस मटेरियल को स्टोर रे रखिया पे से पे विभिन्न जो खर्च करा थाए से सब कैरिंग कॉस्ट रास्ते सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी लॉक्ड of in the material means हमें जति की टंका लॉक ऑफ माने मटेरियल इन्वेस्टमेंट करछन ता पर जो इंटरेस्ट मींस हमें से पैसा सपोज मोर मटेरियल लाख टंका मु किछि पर लाख टंका इन्वेस्टमेंट करछि जदि मु से लाख टंका आपन से इन्वेस्टमेंट करथांती सपोज मते 10000 इंटरेस्ट मिलथांता ताले मु से मु लाख टंका मटेरियल इन्वेस्टमेंट करबा द्वारा मोर 10000 लॉस होला Okay, so the interest on the amount of investment made in the material or the amount of investment locked up in the material means हमें जितने की टंका lock up कर रखी चली material investment करते हैं तार पर जो interest that is also carrying cost. Cost of spoilage and handling in stores means material को handle करला बेले जो नष्ट होते हैं material means जो normal loss होता है साधारणतः पाया बोले बा हम कोई परिबा बा abnormal loss भी होता है handling करला बेले किसी means यदि miss handling करते हैं तार में abnormal loss होता है पर मटेरियल जो स्पॉइलेज होता है सिद्धि तरह जो लॉस होता है दैट इज आल्सो कैरिंग कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मींस स्टोर रे मटेरियल यदि खराब हो जवार संभावना छै मटेरियल खराब हो गले तार इंश्योरेंस करा है जा फिर कि हमको जा खराब हो गला तार पैसा दिन हमको इंश्योरेंस कंपनी हमको रिफंड करो तो तुम जान छ स्टॉक रो इंश्योरेंस करा है एसेट्स रो इंश्योरेंस करा है ओके गुड्स जब हम स्टॉक को तार में इंश्योरेंस कराया था जब इसे जिनस नष्ट होची तो ताले हमको इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करता है तो इंश्योरेंस कॉस्ट जो है दैट इज आल्सो कैरिंग कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस से जो संभावना छै जब ओवर स्टॉकिंग करछन तो हम यदि कोन सी मटेरियल को किनी के रखिछन दी स्टोर्स रे एवं दैट बिकम्स आउटडेटेड और किछ नुवा एडवांस्ड मटेरियल बा एडवांस्ड वेल क्वालिटी मटेरियल आसिला मार्केट रे तो दैट मटेरियल विल बी ऑब्सोलेंस सो जो ऑब्सोलेंस हैगा दैट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस so that is also carrying cost warehouse charges warehouse माने store charges means जदि हमें rent रे आनी चंती the rent जो दो चंती that is then lighting expenses of the warehouse or of the store means हम जो electrification कराय छै lighting expenses जो कराय छै that is also carrying cost loss due to mishandling means mishandle करबा द्वारा जदि किछि loss होछि और loss due to spoilage breakage means भांगी होछि किछि abnormal loss होछि that is also carrying cost ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन रिलेशन टू स्टॉक मींस स्टॉक रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होची मींस हमें तो जो ट्रांसपोर्ट करछथि गोटे जगह आ गोटे जगह को ट्रांसपोर्ट करछथि मूवमेंट करछथि सेति में जो खर्च होता है दैट इज आल्सो कैरिंग कॉस्ट देन क्लरिकल कॉस्ट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ स्टोर्स रे मटेरियल रो मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करिया पे किछ क्लरिकल कॉस्ट होता है मींस तमरो स्टोर कीपर थाए तो स्टोर कीपर मेंटेन करथे किछि रिकॉर्ड्स मेंटेन करथे जि बिन कार्ड मेंटेन कराय थे केते मटेरियल आसिला केते मटेरियल स्टोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू कला आ केते बैलेंस मटेरियल रहिला केते नष्ट हो गला सो विभिन्न जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कराय थे ताको मेंटेन करय पय जो क्लरिकल कॉस्ट हेता दैट इज आल्सो कैरिंग कॉस्ट ओके सो दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर इंक्लूडेड इन कैरिंग कॉस्ट ओके ओवरऑल काय बोले स्टोर रे मटेरियल को होल्ड करिया पे जहां खर्च होय थे ताको कैरिंग कॉस्ट कहै छै ओके एंड तुमको ऑलरेडी दिया है जी पीडीएफ रे ई खर्च को साधारणतः कैरिंग कॉस्ट कहै छै देन ऑर्डरिंग कॉस्ट कोन ना ऑर्डरिंग कॉस्ट हम जानले द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मींस गोटिए ऑर्डर करिया पे जहां खर्च होय थाए गोटिए ऑर्डर करिया पे आ पूर्व तुम जो एग्जांपल दिया है कैरिंग कॉस्ट पर होची नेक्स्ट होची ऑर्डरिंग कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग an order
द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मींस गोटे ऑर्डर प्लेस करिया पे जो खर्च करा जाए आ पूर्व दिन एग्जांपल को अथवा मोर रिक्वायरमेंट्स होची 10000 यूनिट्स दैट इज द रिक्वायरमेंट ओके मु थरे करे सपोज ऑर्डर करची ऑर्डर एट ए टाइम or 1000 units ताले नंबर ऑफ ऑर्डर के देजिवो ना नंबर ऑफ ऑर्डर हे जिवो 10000 यूनिट्स मोर दरकार मु थरे करे ऑर्डर करछि 1000 मींस मते 10 टा ऑर्डर करे 10 ऑर्डर्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैला 10 सेबिया गोटे ऑर्डर करिया पे मते जा खर्च एटी 10 टा ऑर्डर करे कॉलेज को 10000 यूनिट्स किन पे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होची द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मींस गोटे ऑर्डर करिया पे मोर जहां कॉस्ट हे थाय बा जा खर्च हे थाय से होची ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ऑर्डरिंग कॉस्ट रे साधारणतः को खर्च आस्ते ना ऑर्डर कोठी हेता ना परचेज डिपार्टमेंट हेता परचेज डिपार्टमेंट तुम जानछो आगुर मन तुमको बुझाई छी परचेज प्रोसीजर रे फर्स्ट टेंडर इश्यू हेते मीन सप्लाई मन को इनवाइट कराए थे देन कोटेशन आस्ते तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाए थे तो ये सब जो विभिन्न प्रकार कोन प्रोसीजर्स हेते तापर किछ स्टाफ्स थांती जो मन को सैलरी दिया थे ओके तो स्टाफ्स जो माने थांती तांको पय जा खर्च हेते जो माने परचेज ऑर्डर इश्यू करथांती जो माने टेंडर इश्यू करथांती जो माने कोटेशंस को कंपेयर करथांती किछ एम्प्लॉइज थांती तो तांको पय जा खर्च हेते परचेज डिपार्टमेंट रे दैट इज आल्सो ऑर्डरिंग कॉस्ट सो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल आसी साला परे मटेरियल ठीक क्वालिटी रो अछि ना नै बा जो क्वालिटी रे हम मटेरियल मगैथिले बा ऑर्डर करथिले सेही क्वालिटी रो अछि ना नै बा जेतिकी क्वांटिटी रे मटेरियल हम ऑर्डर करथिले सेही क्वांटिटी रो अछि तो इंस्पेक्शन करा जाय तदारक करा ओके तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रे जे स्टाफ ता पय जा खर्च हे दैट इज आल्सो ऑर्डरिंग कॉस्ट सेबडा पेमेंट डिपार्टमेंट माने मटेरियल आसी साला परे पेमेंट डिपार्टमेंट हम साधारणतः अकाउंट्स डिपार्टमेंट था जे कि पेमेंट करथा सप्लाई तो सेते जो स्टाफ थाने तांको पय जा खर्च होता दैट इज आल्सो ऑर्डरिंग कॉस्ट मींस ऑर्डर रिलेटेड मींस मटेरियल को किया पे हम जो ऑर्डर करिथौ ता रिलेटेड जहा खर्च होता दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस मींस हमें जहा पोस्टेज खर्च करथौ लेटर लिखाय थे सप्लायर को मींस स्टेशनरी खर्च किछ हेते पोस्टेज खर्च हेते ए सब जो खर्च हेते परचेज ऑर्डर रिलेटेड दैट इज आल्सो ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ टेंडर इनवाइटेशन कॉस्ट ऑफ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन टेंडर जो इनवाइट कराय था सेति में जो खर्च करता है कराय था कोटेशन आस्ते है कोटेशन रिसीव करे तब जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाय था इवैल्यूएशन कराय था जे को सप्लायर हम पे सुटेबल सेति में जो खर्च कराय था प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर मींस जे सुटेबल सप्लायर तक जो परचेज ऑर्डर इश्यू कराय था बा प्रिपेयर कराय था ये सब जहां भी खर्च होता है रिलेटेड टू परचेज एन आइटम और मटेरियल इज कॉल्ड परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट क्लियर सो ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हम जान ले